नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। 27 जुलाई को पूरे बीदर जिले में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है और जनता अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर ना निकले। सिद्धरामैया का कहना है कि अगर बीजेपी जेडीएस एकजुट हो जाए तो भी कांग्रेस कर्नाटका में 15 से 20 लोकसभा सीटें जीतेगी। डिप्टी सीएम शिव कुमार कहते हैं बीजेपी और जेडीएस हमारी सरकार को अस्थिर नहीं कर सकते। कर्नाटका के 8 जिलों में बहुत भारी बारिश का अनुमान, मछुआरों को समुद्र में न जाने को कहा गया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। वन जीव विज्ञान और पर्यावरण मंत्री और बीदर जिले के प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने आज शहर के अम्बेडकर चौक के सम्मुख स्थित आईबी में अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। आज दोपहर में मंत्री ईश्वर खंडे और नगर प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान के मौजूदगी में अपने कार्यालय में पूजा पाठ करके कार्यालय में प्रवेश किया। इस मौके पर खंडे ने कहा कि वह जिला प्रभारी मंत्री कार्यालय में एक शिकायती पेटी स्थापित करेंगे जिसमें लोग अपनी शिकायतें दे सकते हैं, जिसका निवारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल यह मंत्री कार्यालय में स्थापित किया जा रहा है, आने वाले समय में अन्य विभागों में भी स्थापित करने की योजना है। इस मौके पर विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली, चंद्रशेखर पाटिल, जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी, जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी, एसपी चन्नाबसवन्ना लंगोटिया, जिला पंचायत कार्यकारी अधिकारी शिल्पा एम, डीएफओ सहित अन्य कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संवाददाता आयुषी विजयवर्गीय और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। बीदर जिला ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ। ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಮಾನ್ಯ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ರವರು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಅರಳಿ ಅವರು, ಇನ್ನೋರ್ವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಜಾಪಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಮ್ಮ DFO ಅವರು, ಇತರ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಈ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬೀದರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಆ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ। ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕನಿಗೆ ಡೆಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಏನು ದೂರುಗಳಿದೆ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ಆ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಜನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ। ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ, ಹೊಸ ಹುರುಪು, ಹೊಸ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು, ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದಂಥ ಆಡಳಿತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ। ಇವತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತವಾದಂಥದ್ದು, ಹಗರಣ ರಹಿತವಾದಂಥ ಆಡಳಿತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ। ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಜನರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ। ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನೆನಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಏನು ಇವತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಏನು 371 ಅನುಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ। ಹೋದ ವರ್ಷ ನಮಗೇನು 3,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಇವತ್ತು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ 20% ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಾರಂಭನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ। ಈ ವರ್ಷದ 3 ಮತ್ತು ಹೋದ ವರ್ಷದ ಉಳಿಕೆ ಆದಂಥ 5,000 ಕೋಟಿಗೆ ನಾವು ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಬ್ರೀಮ್ಸ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ। ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಮಗೇನು ಅನುದಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷಣ ವಲಯ ಇದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ವರದಿ ಬಂದಿದೆ, ಸುಮಾರು 1,000 ನಮ್ಮ ಕೊಠಡಿಗಳು ಏನು
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಣೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ವಲಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ನಿಧಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೊರತೆಗಳಿದೆ, ಅದು ಜಿಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ತಾಲೂಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಇರಲಿ, ANM ಸೆಂಟರ್ಗಳಿರಲಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೊರತೆ ಸರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಇವೆರಡೂ ಆದ ಮೇಲೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದತ್ತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ಸಭೆ ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮಗೇನು ಹಣ ಲಭ್ಯ ಇದೆ, ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡುವಂಥ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು 20% ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು 30-40 mm ಮಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸುಮಾರು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 30-35% ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಹ ಬಂದರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಬಂದರೆ, ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿ. जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा कि 27 जुलाई को बीदर जिले में रेड अलर्ट की घोषणा की गई है, क्योंकि 100 से 130 मिलीमीटर बारिश होगी और जनता को अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए और लोगों और मवेशियों को नदियों, झीलों और खाइयों की ओर न जाने की सलाह दी गई। उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय कक्ष में जिला एवं तालुका स्तर के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। हमारे जिले में पुल पर पानी आने और निचले स्तर के पुलों में पानी बहने के कारण लोगों की जान चली गई है। इसलिए PWD और PRED अधिकारियों ने संबंधित तालुका के तहसीलदार से संपर्क किया और कहा कि वे ऐसे पुलों में एहतियाती कदम उठाएंगे। गुरुवार को रेड अलर्ट की जानकारी आमजन को देने के लिए लोनीव एवं ग्राम सेवक ग्राम पंचायत की अनावश्यक घरों से बाहर न निकलने तथा नदी, तालाबों एवं खड्डों की ओर न जाने की चेतावनी दी गई। यदि घर सफेद मिट्टी से बने हैं तो जनता को अपने पड़ोसियों के घरों में अस्थायी रूप से रहने के लिए सावधान किया जाना चाहिए। और क्योंकि भारी बारिश हो रही है, डैम का पानी छोड़ा जा रहा है। बांध के निचले हिस्से के गांव के लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। 26 और 27 जुलाई को जिला और तालुका स्तर के अधिकारी केंद्रीय पद पर है और जिन्हें काम करना है वे छुट्टी पर न जाएं। इन 2 दिनों में सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और सभी को मोबाइल कॉल स्वीकार करनी चाहिए। और जिला कलेक्ट्रेट ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी कोई बहाना नहीं बना सकता। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। यह दावा करते हुए कि भाजपा और जेडीएस 2024 के लोकसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ने के लिए चर्चा कर रहे हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को कहा कि चाहे वे हाथ मिलाएं या नहीं, कांग्रेस निश्चित रूप से कांग्रेस कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटों में से 15 से 20 सीटें जीतेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जेडीएस के एनडीए में शामिल होने की संभावना के बारे में कुछ अटकलें लगाई गई हैं। सिद्धरामैया ने लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा और जेडीएस के एकजुट होने की संभावना के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा, मुझे नहीं पता वे चर्चा कर रहे हैं। अगर वे एकजुट होते तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही वे एकजुट हो या नहीं, हम कांग्रेस इस बार कर्नाटक में निश्चित रूप से 15 से 20 सीटें लोकसभा जीतेगी। जेडीएस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने 21 जुलाई को कहा कि उनकी पार्टी ने राज्य के हितों में भाजपा के साथ विपक्ष के रूप में मिलकर काम करने का फैसला किया है और इस बारे में बात करने के लिए संसदीय चुनाव में भी समय है। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के इस दावे के एक दिन बाद कि कुछ भाजपा नेताओं का अन्य पार्टी के नेताओं के साथ समझौता है और कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए बाहर साजिश रची गई है। कांग्रेस नेता ने मंगलवार को कहा कि वे भाजपा और जेडीएस हमारी सरकार को अस्थिर नहीं कर सकते। हमारी सरकार मजबूत और स्थिर है। आगे शिवकुमार ने कहा, बीजेपी और जेडीएस अपने राजनीतिक फायदे के लिए कुछ राजनीतिक रणनीति बना रहे हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आएगा। इसी बीच जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष सीएम इब्राहिम ने आज कहा कि उनकी ऐसी कोई योजना नहीं है। इसके अलावा जेडीएस नेता ने कहा कि अगर शिवकुमार को कुछ संदेह है तो वह सीधे आकर मुझसे बात कर सकते हैं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने मंगलवार को दक्षिण कन्नड़, उडुपी, उत्तर कन्नड़, चिकमंगलुरु, कोडगु, बेलगावी, हासन और शिमोगा जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी। ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिलों में 115.6 से 204.4 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड होने की उम्मीद है। आईएमडी ने एक बयान में मछुआरों को दक्षिण पश्चिम मानसून के मद्देनजर समुद्र में न जाने की चेतावनी भी दी है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में मध्यम से भारी बारिश के साथ साथ लगभग 4 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। भारी बारिश के कारण कुछ क्षेत्रों में बिजली अस्थायी रूप से बाधित होगी। मामूली ट्रैफिक जाम, असुरक्षित संरचनाओं को संभावित नुकसान और कमजोर पेड़ की शाखाओं को उखाड़ना, यह कहा। सोमवार को उत्तर कन्नड़ जिले के सिद्धपुर और भागमंडला में 200 मिलीमीटर और उत्तर कन्नड़ जिले के कैसल रॉक और गोरसेप्पा में 190 मिलीमीटर बारिश हुई। उडुपी और दक्षिण कन्नड़ जिलों में जिला प्रशासन ने भारी बारिश के कारण सोमवार को आंगनबाड़ियों, स्कूलों और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा कर दी। स्कूल, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज और आंगनबाड़ी मंगलवार को भी बंद रहे। सीटी रवि होंगे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, पाटिल यत्नाल होंगे विपक्ष के नेता।
भाजपा राज्य नेतृत्व को मजबूत करने के लिए कई बैठकें कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव संगठन BL संतोष नई दिल्ली से आए हैं और राज्य इकाई के नए नेता और विधायक दल के नेता का चयन करने के लिए बैठकों में भाग ले रहे हैं। 2 नाम स्पष्ट रूप से उभर रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष के रूप में महासचिव CT रवि और विपक्ष के नेता के रूप में विधायक बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल। इसका मतलब यह भी है कि पार्टी अपने आजमाए हुए जाति संयोजन को चुन रही है। राज्य अध्यक्ष के लिए वोकलिंगा और विपक्षी नेता के लिए लिंगायत। कर्नाटक भाजपा वस्तुतः नेतृत्वहीन हो गई है और पार्टी विधानसभा में नेता के बिना ही काम कर रही है। चुनाव में हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाना तय है। जनता दल सेक्युलर लोकसभा चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेगी। पार्टी सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने मंगलवार को कहा। जेडीएस पार्टी और भाजपा के बीच हालिया संबंधों के बीच विकल्प खुले रखे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की मौजूदा स्थिति के आधार पर भविष्य में अपनी कार्यवाही पर फैसला करेगी। देवेगौड़ा ने यह भी कहा कि उन्हें इस महीने की शुरुआत में यहां विपक्षी दलों की बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया था, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस का एक वर्ग इस तरह के कदम का विरोध कर रहा है, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते थे कि वह वहां हो। गौड़ा के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने पिछले हफ्ते कहा था कि उनकी पार्टी विभिन्न मुद्दों पर कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा के साथ मिलकर काम करेगी, जिससे अगले साल होने वाले चुनाव के लिए दोनों पार्टियों के हाथ मिलाने की अटकलें तेज हो गई हैं। इस साल मुहर्रम के अवसर पर बीजापुर शहर के आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में एक शांति सभा बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता DSP सिद्धेश्वर और PSI इब्राहिम धनुषी ने की। बैठक में बताया गया कि मुहर्रम शांति और भाईचारे के साथ मनाया जाए, कोई भी अप्रिय घटना न हो, इसीलिए नेताओं को क्रम लेना चाहिए। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा किए गए वादे को लागू नहीं करने से बल्लारी जींस विनिर्माण इकाइयों के मालिक राज्य सरकार से नाखुश हैं। राहुल ने उद्योग की मदद के लिए और बल्लारी जिले को देश में जींस उद्योग के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का वादा किया। राहुल के वादे का वीडियो अब वायरल हो रहा है। उद्योगपति इस बात से नाखुश हैं कि सत्ता संभालने के कई हफ्ते बाद भी सिद्धरामैया सरकार ने राहुल के वादे का सम्मान नहीं किया है और बजट में इसका कोई जिक्र नहीं किया है। उन्होंने यह भी बताया है कि जींस टेक्सटाइल पार्क विकसित करने के लिए बजट में कोई धनराशि आरक्षित नहीं की गई है। राहुल ने कहा था कि फंड आवंटित करने का फैसला कांग्रेस सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। मालिकों में से एक कोल्क्स मल्लिकार्जुन ने कहा, हमें उम्मीद थी कि जब राष्ट्रीय नेताओं में से एक ने वादा किया था तो इसका सम्मान किया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं किया। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। 27 जुलाई को पूरे बीदर जिले में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है और जनता अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर ना निकले। सिद्धरामैया का कहना है कि अगर बीजेपी जेडीएस एकजुट हो जाए तो भी कांग्रेस कर्नाटक में 15 से 20 लोकसभा सीटें जीतेगी। डिप्टी सीएम शिव कुमार कहते हैं, बीजेपी और जेडीएस हमारी सरकार को अस्थिर नहीं कर सकते। कर्नाटक के 8 जिलों में बहुत भारी बारिश का अनुमान। मछुआरों को समुद्र में न जाने को कहा गया। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।